بسم اللہ الرحمن الرحیم. ننکانہ صاحب پنجاب کا ایک پرانا ضلع نہیں لیکن ایک پرانی تہذیب کے ساتھ بہت زیادہ ایفیلیٹڈ ہے، جس کے اندر ہمارے سکھوں کے گردوارے ہیں اور ہماری سکھ برادری جو کہ پاکستان کا بہت اہم حصہ ہے اور دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہے، اس کا بہت ہی اہم ورثہ یہاں پہ موجود ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی پی او ننکانہ. جی سائد صاحب، یہ سائد کیا ہے، سید کیا ہے، آپ سید ہے، کیا ہے؟ سر بیسیکلی یہ عربک سے سر ڈیرائیوڈ ہے، نام سائد ہے سر. تو اس کو سر جنرلی لوگ کنفیوز کرتے ہیں، سعید بھی کہتے ہیں، سید بھی کہتے ہیں. میں نے سر اس کی بڑی ڈیفرنٹ فارمیشن سنی ہوئی ہیں، لیکن سر ایکچولی اٹس سائد. سر سائد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائد کا مطلب ہے بلندی پر جانے والا. بلندی پہ جانے والا. اللہ آپ کو کامیاب کرے. یہ بتائیے آپ کا پہلا ڈسٹرکٹ ہے؟ سر یہ میرا ایز اے ڈی پی او فرسٹ ڈسٹرکٹ ہے سر. اس سے پہلے میں پنجاب میں سر لاہور میں سرو کر چکا ہوں تقریباً 2.5 سال ڈفرینٹ اسائنمنٹس پہ، اور سر میری سروس کا سٹارٹ اسلام آباد پولیس سے ہوا تھا سر. اچھا، تو یہ بتائیے کہ ننکانہ میں آپ کو کن مین چیلنجز کا سامنا ہے؟ سر ننکانہ شہر جو ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو جو سب سے اس کی زیادہ سگنیفیکنس ہے سر، وہ یہاں پہ انٹرنیشنل ریلیجیس ٹورزم ہے سر. یہاں پہ سر سکھ ٹورسٹ جو ہیں سر، ہمارے اپنے جو انڈیجنس سکھ ہیں وہ بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ سر انڈین سکھ یاتریز آتے ہیں اور بہت سارے مغربی ممالک سے، یو کے سے، یو ایس سے، کینیڈا سے سر یہاں پہ سکھوں کی بڑی فریکوینٹ آمد و رفت رہتی ہے. تو وہاں پہ سکھوں کا کیا کیا چیز موجود ہے؟ سر سکھ مذہب کے بانی جو ہیں بابا گرو نانک دیو جی، ان کا سر جو یہ برتھ پلیس ہے بیسیکلی، تو اس برتھ پلیس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے سر یہاں پہ سن 1600 میں گردوارہ جنم استھان بنایا گیا تھا، جو سر سکھ کمیونٹی کے لیے اگر ہم ان کے لیے سگنیفیکنس کے حوالے سے بات کریں تو شاید ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا جو حامل لوکیشن ہے سر وہ یہ والی لوکیشن. تو یہاں پہ پاکستان کے سکھ زیادہ آتے ہیں کہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، کینیڈا میں بھی بہت ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، اور ہندوستان میں بھی سکھ برادری ہماری رہتی ہے، ہمارے بھائی رہتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں؟ سر یہاں بیسیکلی 4 بڑے ایونٹس ہوتے ہیں سر. یہاں بیساکھی کا پروگرام ہوتا ہے، بابا گرو نانک کی جو جنم دن ہے وہ منایا جاتا ہے نومبر میں. اس کے علاوہ سر کچھ اور یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں. تو جنرلی سر یہاں پہ ان ایونٹس پہ تو بہت زیادہ یہاں رش ہوتا ہے، اور انڈیجنس کمیونٹی بھی آتی ہے سر. سندھ سے بہت لوگ آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، کے پی کے سے، اور اس کے علاوہ سر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ فریکوینٹلی ٹریول کرتی رہتی ہے سر. اچھا، یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ کرائم کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ بڑا پیسفل سا علاقہ ہے کہ کوئی بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے؟ سر ننکانہ کمپیریٹیولی تو ایک ینگ ڈسٹرکٹ ہے سر، 2005 میں بنا تھا، لیکن سر یہ کس میں سے نکالا گیا؟ سر ضلع شیخوپورہ میں سے بنایا گیا تھا اس کو سر. لیکن سر ننکانہ کی جو ایک جغرافیکل یونیکنیس ہے سر وہ یہ ہے کہ ننکانہ کو 4 جو بڑے اہم ضلع ہیں وہ سراؤنڈ کرتے ہیں، جن میں شیخوپورہ، لاہور، فیصل آباد اور اکاڑا شامل ہیں سر. ان ریجنز کی پراکسیمیٹی کی وجہ سے سر جو جغرافی ہے سر وہ ہمارے کرائم کو کافی حد تک دکھائیے. جغرافی کیا ہے اگر کائنڈلی دکھائیے، ہم یہاں نیچے اتر کے ہمیں سمجھائیے ذرا. سر یہ اگر ہم بات کریں تو یہ سر ہمارا ننکانہ صاحب سٹی ہے سر، جو ہمارے ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹرز ہے سر. یہ سر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سر، جو باؤنڈری لائن یہ بنی ہوئی ہے سر، یہ ہمارے ریجن کی جو صدرن باؤنڈری ہے سر، یہ ریور راوی ہے سر. تو راوی کے پاس یا ریور کے پاس بیلٹ میں وارداتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں سر. راوی ریور کی پراکسیمیٹی کی وجہ سے جو ایک جنرل ایک امپریشن ہوتا پانی تو وہاں ہے نہیں کہتے، پھر واردات کیسے ہو جاتی سر؟ لیکن یہاں پہ ایک جو جنرل آبزرویشن ہے سر، ایک جنرل امپریشن ہے کہ جو ریورائن کمیونٹی ہوتی ہے اس کے اندر کرائم کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کا یہ اوپر فیصل آباد تو شیخوپورہ اوپر کی سائڈ پہ آ سر یہ ہمارا اس طرف ضلع فیصل آباد ہے سر سارے کا سارا. جڑا والا جو ہے سر ہمیں سب ڈویژن لگتا ہے سر. اور یہ سر ہماری مین جو ہائی وے اگر آپ سر یہ دیکھیے گا تو یہ ہماری لاہور شیخوپورہ جو فیصل آباد شیخوپورہ روڈ جا رہی ہے سر. فیصل آباد شیخوپورہ روڈ سر ایک مین ہائی وے ہے، وہاں پہ راؤنڈ دا ڈے ٹریولنگ ہوتی ہے، پبلک کمیوٹ کرتی ہے. تو سر یہ ایک بڑا چیلنج ہے یہاں پہ اس کو سیف گارڈ کرنا. لائک وائز سر اگر ہم اوپر آ جائیں تو یہاں پہ ہماری جو مین موٹر وے M3 ہے سر وہ جا رہی ہے. موٹر وے بھی آپ کو لگتی ہے؟ ایگزٹ بھی لگتا ہے موٹر وے؟ سر موٹر وے کے ہمیں 2 مین ایگزٹس لگتے ہیں سر. ایک ہمارا کھیاڑے کلا انٹرچینج ہے جو ہمارا ملتان موٹر وے کے اوپر ہے، اور ہمارا سر پنڈوری انٹرچینج ہے جو فیصل آباد لاہور موٹر وے کا جو ایک. تو آپ کن سے ملوانے لگے ہیں؟ جی بتائیے سر. ہمارے ساتھ ہماری ضلع کی تمام ٹیم موجود ہے سر. میں اپنے سارا ضلع چھوڑ کے ادھر آ گیا تو وہاں پہ کون؟ نہیں سر، ہم ضلع کے اندر بھی سر کام چل رہا ہے، وہاں لوگ چھوڑ کر آئے ہیں سر. یہ سر SHO صدر سانگلہ ہیں سر، مجاہد ملی. سر وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ڈکیت جو ہوتے ہیں کچھ وہ پبلک کے لیے دہشت کی علامت ہوتے ہیں، تو سر یہ ڈکیتوں کے لیے دہشت کی علامت ہے. زبردست. اور سر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. پہلے مانگٹا والا میں کام کیا سر، ابھی آج کل یہ صدر سانگلہ میں فرائی سر انجام دے رہے ہیں. کتنی سروس ہو گئی؟ سر 16 سال سر. 16 سال آپ کی سروس ہو گئی. ایز واٹ آئے تھے؟ کس رینک پہ آئے تھے؟ TASI سر. TASI آئے. کون سا بیچ ہے یہ؟ یہ سر 7 کا بیچ ہے. 2007 کا بیچ تو مطلب بعض ضلعوں میں 2016 کا بیچ بھی ہے ماشاء اللہ ہم بات ہیں جس میں پروموٹ کر چکے ہیں. اور پروموشن جو ہے اس کے بعد آپ کی اگلی پروموشن کب دی ہوا ہے؟
ये सर नेक्स्ट ईयर सर। नेक्स्ट ईयर डी वो कोर्स वगैरह कर दिया आपने पूरे? अच्छा, तो क्यों अब दहशत की लामत बने हुए हैं यार इतने अच्छे लोगों के लिए? सर नहीं सर, वहाँ पे चूंकि जहाँ पे क्राइम है सर, वहाँ पब्लिक को रिलीफ देने के लिए पुलिस जो है वो अच्छा, ये बदमाशों के लिए दहशत की लामत है सर, और डकैतों के लिए, चोरों के लिए जो लोगों को तंग करते हैं। कैसे बन गया दहशत की लामत? देखने में तो आप बड़े प्रोफेसर टाइप लगते हैं सर। जब कोई जराइम पेशा अफराद जो जुर्म करते हैं हमारे थाने के पीछे, उनको ट्रेस करते हैं सर, फिर उनको सर उनसे कोई मिसाल दीजिए। सर ये हमारे पास एक मुकदमा है सर मांगटा वाला का सर, जिसमें सर ये इनको 5 जून को सर इनको फायर लगे सर दोनों टांगों में सर। 20 लाख रुपया सर इनसे छीना गया। इनको हमने सर विदिन 24 आवर इनको हमने ट्रेस करके सर तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो फिर आपकी रिकवरी का क्या बना? पुलिस खा गई? नहीं सर, डीपीओ साहब ने अपनी निगरानी में और एसएचओ और डीएसपी ने निगरानी में दिए थे। निगरानी में आधा कर लिया? नहीं नहीं, पूरी रिकवरी उन्होंने मुझे दी। आपको मिल गई पूरी? ये पुलिस ने दे दी आपको? पुलिस ने दिया। तो लोग तो ये नहीं मानते बात। सर लोगों ने माना, हमने पूरा सेमिनार करके। नहीं, आपके केस में हुआ होगा, बाकी लोग कहते हैं पुलिस क्यों नहीं रिकवरी खा जाती है पुलिस? नहीं सर, 100% मेरे ख्याल से अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि पुलिस जो है वो रुपया इधर से उधर कर सके, क्योंकि लोग तो साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं इमीडिएटली उसके अंदर। तो कौन लोग थे ये? सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं बैंक से निकला था कैश लेके, तकरीबन 5 जून को 4 बजे का टाइम था। एक बैंक से मैं दूसरे बैंक की तरफ जा रहा था। अभी मैं रोड क्रॉसिंग कर रहा था, 2 लोग थे 125 पे, तो उन्होंने आते ही फायरिंग की है पहले, मतलब स्ट्रेट फायर बगैर कुछ बताए, दहशत डालने के लिए ना, ताकि अगला फिर बिल्कुल ही करोड़ ज़्यादा था। उन्होंने पाँव पे फायर किए, पहला फायर नीचे लगा, दूसरा मुझे इधर लगा। एक उतरा, मैंने कैश फेंक दिया। कैश फेंकते हुए मैंने जब वो मेरे पास आया ना, मैंने उसे धक्का दिया है, तो वो उससे मोबाइल था वो नीचे गिर गया, और उसने वैसे ही दूसरा फायर कर दिया जो मेरी इस टाइम पे लगा, और वो कैश लेके निकल गया। मौके पे एसएचओ साहब भी आए, डीएसपी साहब भी आए, और डीपीओ साहब की मुझे कॉल भी आई, फुल मेरे साथ वो उसके बाद माशाल्लाह कैफरे किरदार तक हमने पहुंचा दिया उनको। चले बैठिए, तशरीफ रखिए। वेल डन। इसके अलावा सर इन्होंने बैठिए, आप तशरीफ रखिए। शूटर गैंग पकड़ा है सर, जिन्होंने 5 कत्लों का इंकशाफ किया सर। वो क्यों करते थे जी? सर वो बेसिकली किराए के कातिल थे सर, और डिफरेंट सर जो लोग हैं वो उनके बिहाफ पे ऑपरेट करते थे। हमने सर 3 मेंबर्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनको सर हम बिल्कुल जो है वो। तो ये बदमाशी में कर रहे हैं या पीछे कोई बंदा पैसे लेके करवा रहा है? सर बेसिकली तो ये एक बदमाशी का एलिमेंट है। ये सर जो हमने बंदे पकड़े हैं ये भत्ताखोरी भी करते थे वहाँ पे, क्योंकि सर ये बॉर्डर एरिया है 3-4 ज़िलों का। वहाँ पे सर ये फील करते हैं कि ये इम्प्यूनिटी से ऑपरेट कर सकते हैं। हमने सर इनकी प्रॉपर फील्डिंग लगाई। उसमें भी मुजाहिद का किरदार सर, मुजाहिद का किरदार है, साथ हमारे वो सुहेल बैठे हैं सर, मैं आगे आपसे मिलवाऊंगा। इन्होंने सर बड़ा शाबाश जी। सैफ साहब स्मार्ट ऑफिसर है जी, आप किस रैंक पे आए थे? सही किस कौन सा बैच? 2000 ये वाला बैचमेट है हम तो। बैच में तीनों बैचमेट हैं आप कामरान। तो मैं आप लोग में दोस्ती किसकी ज्यादा, लड़ाई किसकी ज्यादा बैचमेटों में होती है ना थोड़ी सी? तो अच्छा, कौन ज्यादा दोस्त है कौन? क्यों जी? सर सारे दोस्त हैं। अल्लाह खैर करे फिर तो। अच्छा जी, तो सैफ साहब ये बताइए कि इनको क्यों ले आए जी? सर इनकी क्वालिटी ये है कि वो अवाम दोस्त पुलिस ऑफिसर है सर। जनरली सर हम डाकुओं के पीछे या कत्ल के पीछे चलते हैं, या हम हीनियस क्राइम की तरफ चलते हैं। इसकी सर क्वालिटी ये है कि 392 है, 379 है, या मोटरसाइकिल चोरी जो है गरीब की सवारी है सर ये बड़ी डेडिकेशन के साथ ऑटो के ऊपर ये सर अपने नंबर ले दिए सर, तो लोगों को क्या समझ आएगी? मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात, चोरी के मुकदमात जो हम समझते हैं कि शायद उतने हीनियस नहीं है, या पुलिस के लिए ये नहीं हमारा ख्याल होता है कि मोटरसाइकिल चोरी होगी ना, उसके लिए तो वही उसकी मर्सिडीज है, वही उसकी कोरोला है, उसी पे वो रोजगार का बंदोबस्त करता है, उसी के ऊपर बच्चों को लेकर जाता आता है। और anyway, हाँ जी सर सैफ ऑटो के ऊपर लगा रहता है, और इसने सर ऑटो पर लगते हुए तकरीबन 4 से 5 गैंग ट्रेस किए, मोटरसाइकिलें बरामद की, लोगों को उनकी रिकवरी दी। बैठिए जी। कामरान सर अगेन ये सर 1 मैन आर्मी है सर, जो हमारा शेखुपुरा फैसलाबाद रोड है सर, उस रोड को सर ये बंदा गार्ड करता है। वहाँ पे सर हैवी ट्रैफिक की भी मूवमेंट होती है। वारदातों के हवाले से सर एक टाइम था कि वहाँ पे नाका लगा के जो है वो डाकू वारदात करते थे। कुछ सर वहाँ टर्न्स आते हैं जहाँ स्पीड स्लो होती है तो पब्लिक लुटती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारी उस मेन रोड के ऊपर जो हमारी पॉकेट बनती है, इसमें प्रिवेंशन का कितना किरदार है कामरान की, हम पेट्रोलिंग करें, और डिटेक्शन का कितना किरदार है? क्योंकि मेरा इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर इसमें दोनों इक्वल है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन। अच्छा 50-50 कहेंगे सर? अगर बिल्कुल दिल से कह दी बात जी सर, मैं बिल्कुल। अच्छा, मैं समझूंगा कि प्रिवेंशन जो है, पेट्रोलिंग अच्छी बात है, लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती होगी, लेकिन मेन काम मेरे ख्याल से डिटेक्शन है। मेरा तो ये बात सर डिटेक्शन भी मेन काम है, लेकिन सर अगर अपने ठिकरी पैरा जात लगाए वो ठीक है। हाँ जी गांव में तो, और आप मेन रोड्स पे रहें तो उससे काफी बेहतर। प्रिवेंशन भी वो हो जिसमें डिटेक्शन का
आंसर हो कि बंदे पकड़े जाएं किसी ना किसी तरह। अच्छा आप बताइए। सर रिसेंटली एक सर पुलिस एनकाउंटर हुआ है 99 मुकदमात में सर, परवेज उर्फ परू सर वो तो वो सेंचुरी क्यों नहीं होने दी उसकी आप? सर वो 99 पे कैसे रुक गया? सर सेंचुरी मेरे वाले मुकदमे में हो गई सर। अच्छा चलो ठीक हो गया, अल्लाह ताला खैरियत रखे। तो क्या कहाँ करता था पैसे, क्या करता था वो? सर वो 16 जिला में उसका रिकॉर्ड है सर, और 22 मुकदमात में साहब इश्तिहारी है सर, और हर तरह का मुकदमा, हर तरह का कत्ल सर। और मजे की बात जो ये है, जो मुल्हिका जिला के जो एडजेसेंट पुलिस स्टेशन है सर, उनमें भी और हमारे जो ननकाना साहब में भी 15 की कॉल सर, जो क्राइम क्या वो अकेला करता था वारदात? नहीं सर, उसने एक पूरा गैंग बनाया हुआ था सर, उसके हमारे साथी भी ट्रेस कर लिए, और सर वो रस्सागीर था बहुत बड़ा सर। ये रस्सागीर क्या होता है? वो रस्सा खींचते हैं? नहीं सर सर वो ये जो लेते हैं वारदात करवाने के बाद अपना हिस्सा वगैरह लेते हैं, और सर चोरों डकैतों को पनाह देते हैं और माल मवेशी सर संभालते हैं, ये सर वो सर बेसिकली टर्म जो कॉइन हुई है, जो सर मैंने स्टडी किया हुआ है, ये गेजेटर्स में ये बात आई हुई है कि वो जब खोजी खुरा निकालता था तो वो रस्सा रख के उसकी अलाइनमेंट करता था, और वो रस्सा जहाँ लीड करता है वो दैट मीन्स कि वो कैटल थेफ्ट का जो खुरा है वो वहाँ पहुँचा। पहले ज़्यादातर फिर रस्सागीर फिर लेता था, आगे बेचता था, और फिर लाजमत पुलिस से बचाता था और सारा कुछ करता था। तो अभी भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है रूरल एरियाज में? सर रूरल एरियाज में है। और रस्सागीर अब जो है, पहले मैं तो समझता हूँ भैंस चोरी तो अब होती नहीं, भैंस डकैती होती है, यानी गन पॉइंट पे ट्रकों में डाल के लेके जाते हैं, वो भी वारदात वहाँ पे है सर। अभी कम हो गई है सर, रिसेंटली एक सिटी शाहकोट में हुई थी सर, वो भी इसने करवाई थी, और वो उसने जब वो जख्मी हालत में था तो अच्छा शहरों वालों को नहीं पता होता कि भैंस कितनी इंपॉर्टेंट है। वो भैंस चोरी का, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल कॉन्नोटेशन एक मुकदमे में आ गई, तो भैंस चोरी वो समझते कुछ भी नहीं है, हालांकि जिसकी भैंस निकल जाती है या 4-5 जानवर चले जाते हैं, वो तो पूरा उसका आप समझ लें कि आपने उसको उसकी फैक्ट्री लूट ली। सर ऐसे ही है, कईयों के सर पास बकरियां होती हैं, वो भी उसकी सारी प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी चली जाती है। भैंस बकरी सर इक्वली होती है। हाँ, वो जो उसका वो उसके बच्चे भी उससे दूध पीते हैं, उसका इनकम भी उससे चलती है, उससे वो और मुल्क की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जबरदस्त, बैठिए तशरीफ रखिए जी। जी तसव्वुर साहब, आप भी बैचमेट हैं? मैं 2003 में 2003 में आप बैठिए तशरीफ रखिए। हाँ जी सर, तसव्वुर जो है ये SHO मांगटा वाला है सर, पहले SHO सदर शाहकोट। आप इतने पोलाइट वो है, बोलते हैं, तो लोग आपको पुलिस अफसर मानते भी हैं कि नहीं? सर मैं उसकी एक बड़ी शॉर्ट सी अगर मिसाल दूं सर, हमारा जो ज़िला है, हमारे ज़िले में सर 15 की जो क्राइम की कॉल्स हैं जिसके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है, लोग कहते हैं पुलिस पर्चा नहीं देती, पुलिस पर्चे खाती है क्राइम डाउन करने के लिए। हमारे ज़िले में सर अप्रैल में 142 वायलेंट क्राइम की कॉल्स थी, डकैती रॉबरी की, जो अब सर 82 पे आ गई हैं, और वो सर इनकी एफर्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतने पोलाइट हैं तो आपका कोई रोक दबदबा भी है कि नहीं? इसके साथ काम चल जाता है सर, लेकिन ये है कि दे ऑल अंडरस्टैंड आवर विजन सर। सर ये आसिफ और वकास हैं सर, इन्होंने सर 16 साल पुराना कत्ल का जो इश्तिहारी है उसको बड़े अनोखे तरीके से अरेस्ट किया। कैसे जी बताइए? अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके जरिए किसी और इश्तिहारी को इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा होगा तो वो ना बताइए ज़्यादा। ये अगर हमारा कोई टेक्निक ऐसी है तो वो हम डिस्क्लोज ना करें। तो ये बताइए, जो 16 साल से पहले जो कत्ल का इशारी चला आ रहा था, उसका बना क्या हुआ, बंदे का क्यों कत्ल हुआ था और आपने क्या किया? सर जो मुलजमान की बैंक के साथ उसने पसंद की शादी की थी, इसी बात का उनको रंज था, उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर कत्ल कर दिया था। फिर वो सर 2006 से बदस्तूर इश्तिहारी चले आ रहे थे। उसी दौरान सर वो सऊदीया और दुबई भी गए थे, हमने उनकी सर ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह ली। सर उन एक लड़के ने जो अपना ID कार्ड था वो तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था, दूसरे ने सर कुछ इस्तेमाल किया था, तो उधर से आपने उसको ट्रेस किया? जी सर। अच्छा, आप अभी यहाँ पे सब इंस्पेक्टर किस थाने में? सर ये इंचार्ज चौकी हैं बुच्चे में सर, बुच्चे की बड़ी चौकी है सर, सर, और वहाँ पे क्राइम के हवाले से एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा जी। और वकास सर, ये वकास जो है ये हमारा PRO भी है सर, एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब सर। अच्छा, कितनी एजुकेशन है आपकी? सब BA यानी BA करके आप कांस्टेबल हैं, और सब इंस्पेक्टर साहब आपकी कितनी तालीम सर है? मेरी MA इंग्लिश है सर। MA इंग्लिश करके सब इंस्पेक्टर है, और ये है एजुकेटेड पंजाब पुलिस। यानी कि जो लोग समझते हैं ना कि ये वही का वही चल रहा है और दकियानूसी, मेरे ख्याल से थिंग्स हैव चेंज्ड। सर थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट सर, बिल्कुल। मैं चलिए बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए तशरीफ रखिए। जी जनाब, DSP साहब, शुक्र है DSP साहब भी आ गए हैं जी। सांगला जी जनाब, जनाब बताइए, सांगला में किस किस्म का क्राइम है? सर मेरे पास 2 तहसीलें हैं, एक सांगला एक शाहकोट। हाँ, शाहकोट और सांगला, ठीक है। 4 थाने हैं सर, तो उसमें सर ना तमाम किस्म का जो है मैं, क्योंकि साथ वाले ज़िले जो तो आप DSP साहब ये आए, बाकी नहीं आए, इनकी क्या वजह आने की? सर इनकी वजह ये है कि ही डिग्स थिंग्स आउट सर, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके, जो अक्सर औकात जो इस लेवल पे सुपरवाइजरी लेवल पे लोग समझते हैं कि शायद ये हमारा करने वाला काम नहीं है। हाँ, ये सर ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके चीज़ों को जो है खुद उनकी टो लेते हैं, और उसके बाद ही मसलन उसका कोई फ़ायदा बताइए जो हुआ हो। सर उसमें फ़ायदा ये होता है सर कि एक तो जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का एक लेवल है सर वो एनहेंस हो जाता है। लेकिन कोई केस बताइए जो ट्रेस हुआ हो जिस तरह आप बता रहे
سر کیس کے بارے میں آپ کو بتا کیس تو میں نے اتنے ٹیسٹ کیے کہ مجھے آپ کو بتا بھی کتاب لکھ سکتے ہو؟ کتاب لکھ سکتے 30 سال سے کوئی اکٹھا کر رہے ہو 30 ایئرس کی سروس 30 سال جو تو 30 ایئرس میں کوئی ڈیٹا اکٹھا بھی کیا کتاب لکھنے کے لیے؟ اچھا زیادہ ڈیلی اصل میں سر میں نا سب سے پہلے میں جاتا ہوں موقع پہ وہاں جا بس کے دیٹ از دا کی کہ آپ موقع پہ پہنچتے ہیں اور وہاں سے موقع بولتا ہے. پھر سر میں یہ فیل کرتا ہوں جیسے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا. جب مدعی کو میں دیکھتا ہوں ایمپتھی میں یعنی کہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں درد محسوس کرنا, تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اس میں انوالو کیسے. یعنی آپ اور پھر آپ کو ملزم کے پیروں میں یا مجرم کے پیروں میں جا کے سوچنا ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. جب سر ملزم میں سوچتا ہوں کہ میں ملزم ہوتا تو میں کیا کرتا, بس اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی. یہی کامیابی ہے, یہی دیٹ از آل دیٹ یہ کسی اے ایس پی کو یا ینگ سب انسپیکٹر کو لرن کرنا ہے کہ پہلے وہ ایمپتھی رکھے کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے, اور پھر وہ ملزم کے طور پہ سوچے کہ میں ہوتا تو یہاں پہ کیا کر رہا ہوتا. ابھی سر آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اتنے پولائٹ, میں اس سے ایک جواب دوں اس کا. یہ دے دیں, آپ کو بھی روک سکتا ہے پولیس آپ کو. کبھی ہم نے کسی ججوں کو دیکھا ہے کسی کو گالی دیتے ہوئے؟ نہیں, لیکن ان کا نام ہوتا ہے جی فلاں جج بڑا تکڑا ہے, اس کا فیصلہ بولتا ہے, اس کی باڈی لینگویج بولتی ہے, اس کا کردار بولتا ہے. آپ کسی سے کچھ لے نہیں, کرپشن نہیں کریں, انصاف کریں, میرٹ پہ کام کریں, سیاسی دباؤ نہ مانے تو آپ کی بدماشی ہے سر. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ویک آدمی ہے. پڑھاتے بھی رہے کہیں آپ؟ سر میں نے ایم انگلش کی LLB کی ہے سر. ایم اے انگلش LLB DSP. دس از واٹ پیپل ڈونٹ نو. یہ وہ چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتا, اور آپ کو پڑھانا بھی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا پہلے پڑھاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, پتہ چلتا ہے. بیٹھیے تشریف رکھیے. یہ پیارا سے بچہ کدھر سے بھاگ کے آ گیا؟ سر یہ آپ کا بہت بڑا فین ہے سر. اچھا, میں نے تو کہا تھا لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اجی صاحب سے ملنا ہے. یہ سر میرا بیٹا ہے سر. اچھا, یہ سر آپ سے ملنے کا بہت زیادہ اس کو اشتیاق ہے. یہ اس نے جو ٹریک سوٹ پہنا ہے, کیا پہنا ہے بھائی برادر, اس کی جیب میں چیک کر, یہ پولو پہنا ہوا ہے. یہ تو پولو ہے, تو یہ گھوڑا بھاگتا بھی ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کی ویڈیوز پورا دن دیکھتا ہے بیٹھ کے سر. اچھا, اور یہ مجھے جب اس کو پتہ چلا کہ آج میں اجی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں تو اس نے کہا, یہ سر میرے سے پہلے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا کہ میں نے ساتھ جانا. لاہور جانے کا شوق ہوگا نا. اچھا جناب آتے رہے ساتھ ساتھ. سر یہ شیراز اور اویس ہیں سر. شیراز اور اویس, اور آپ انچارج فرنٹ ڈیسک فرنٹ ڈیسک انچارج. اور یہ ہے فرنٹ ڈیسک کرتا کیا ہے, آپ بتائیے. سر فرنٹ ڈیسک تھانہ کے اسٹارٹ میں استقبالیہ کمرہ ہے, جو بھی سائلین آتے ہیں. تو آپ ہیں پولیس کے؟ جی سر. تو وردی بھی نہیں پہنتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ہم جیسے بینک میں یا کسی کارپوریٹ میں جاتے ہیں تو لوگ سول ہے نا, پولیس والوں سے لوگوں کو فیئر ہوتا ہے. اگر کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ جب پولیس والا پوچھتا ہے نا کہ ہاں تو وہ ایک امپریشن کو چینج کرنے کے لیے ہم نے کیا, اور 1400 میرٹ پہ, جن میں سے پہلے بیچ میں 400 بچے بھرتی ہو چکے, اور اب 1000 کا دوبارہ امتحان ہو رہا ہے. پولیس اسٹیشن اسسٹنٹس اور سینئر اسٹیشن اسسٹنٹس. تو آپ نے کمپیوٹر کی کوئی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے؟ میں نے ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے. تو آپ کو الگ کرنے کا, یعنی پولیس کی وردی کے بغیر دینے کا مقصد کیا تھا؟ سر لوگوں کا جو خوف کے علاوہ, اور تاکہ آپ پرچہ درج کریں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا چلتا. یہ ای ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ سر ایک الیکٹرانک ٹیگ ہے, جیسے ہی کوئی اپلیکیشن تھانے میں آتی ہے ہم فوری اس کو ای ٹیگ کرتے ہیں اور اس کا ٹائم سلاٹ شروع ہو جاتا ہے. سر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر یعنی کہ اگر ہمارے پاس ڈکیٹی, رابری اور سنیچنگ کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے نا, اس کا 24 آور ٹائم ہے. ہمارا ڈسٹرکٹ آٹو پہ لگا ہوا ہے. ڈکیتی چوری تو 8 گھنٹے نہیں ہے سر, 24 گھنٹے, اور اس کی مرڈر کی 8 گھنٹے. سر مرڈر اور ریپ کی 8 گھنٹے. مرڈر اور ریپ 8 گھنٹے میں ہو جاتا ہے پرچہ درج. سر ہمارا ضلع آٹو پہ, واٹس ایپ پہ, یہ پہلی والی پولیسنگ سارا کچھ آٹو پہ, وہاں بھی آٹو پہ تھا, یہاں بھی آٹو پہ. ایس ایچ او سے اجازت لینی, ایسا نہیں ہے. ایس ایچ او صاحب ہائی کورٹ ہے, کہیں بھی ہے, ہم واٹس ایپ پہ اپلیکیشن ہمارا PS سے سینڈ کرتا ہے جو تھانے میں بیٹھا ہوا ہے. سر یہ ایشو ہے تو وہ فوری کہتا ہے فوری FIR درج کریں اور مجھے بھی واٹس ایپ کریں. سر محرر کی اور فرنٹ ڈیسک کے انچارج کی ہم نے بہت اسٹرانگ انٹیگریشن کی ہوئی ہے, اینڈ دے آر بوتھ ایکولی ریسپانسبل. لیکن کہتے ہیں کہ محرر فرنٹ ڈیسک پر پھر سواری کرنا شروع ہو گیا اب آ کے. نہیں سر, جو سپس آ گئے ہیں ہمارے سر, اس میں محرر سپس کیا یہ جو سر اسپیشل انیشیٹو گلاس کے سپس کرتے ہیں؟ اچھا نہیں سر, یہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن ہے جس میں یہ سر ہم نے تھانہ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ. فرنٹ اینڈ پہ سر SHO کا روم ہوگا اور وزٹر روم ہوگا اور فرنٹ ڈیسک ہوگا. تاکہ جہاں لوگوں نے, ہاں دیکھیں جتنے لوگوں نے آنا ہے وہ فرنٹ ڈیسک پہ رہیں گے. پنجاب کے 735 تھانے 31 دسمبر تک انشاءاللہ سپس پروٹوکولز, کمپیوٹر سسٹمز اور انتہائی خوبصورت ہوں گے. ان میں سے ہمارے 114 تھانے ایسے جن کے پاس ابھی جگہ نہیں ہے, جو ہم نے جگہ حاصل کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جن کے پاس ابھی اپنی بلڈنگ ہی نہیں ہے, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہم سپس پروٹوکولز لگا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. زبردست, بیٹھیے تشریف رکھیے. ہاں جی سر, ان دونوں جوانوں کی خوبی یہ ہے سر کہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے, یہ پیچھے مدعی بیٹھے ہیں, ان کا 9 سال کا بچہ ایک ہارڈنڈ کرمنل جو قتل میں 7 سال کاٹ کر آیا تھا, وہ لے کر جا رہا تھا. انہوں نے سر اس بچے کی جان. آئیے تشریف. 1 کی کال چلتی ہے. اچھا پھر کہ بچہ گوا ہو گیا اور ٹریکٹر جو ہے وہ چھین لیا. اچھا, ہم نے ناکہ لگایا اپنی بیٹ میں. تو یہ 2 کانسٹیبلز اکٹھے کام آپ لوگ کر رہے تھے بائک پہ. ہے محافظ آؤٹ کیا ہوتا ہے ابھی؟ محافظ آؤٹ کرتے تھے, بائک پہ گشت کرنے والوں کو محافظ کہتے ہیں, آپ لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں, اور آپ گشت کے اوپر آؤٹ تھے. ٹھیک ہے, پھر
सर हम वहाँ पे नाका लगाया हुआ था कॉल के बाद, ठीक है, तो एक बाइक हमारी साइड पे आई है, वो हमें देख के टर्न राउंड होगी वापस। आपको अंदाजा हो गया? जी सर, हम उसके पीछे गए। अब यहाँ नहीं ना पता चलता कि ये पाकिस्तान का जो हीरो है, ये पाकिस्तान का जो बेटा है, ये आपका जो ऑफिसर है, पुलिस का सिर्फ नहीं, ये आपका ऑफिसर है, ये आपका ऑफिसर है। इसको तो नहीं पता था आगे से गोली चल जाएगी, और आपने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी होगी, हेलमेट भी पहनी होगी, नहीं ना, नहीं होती ना हर वक्त, नहीं 20-20 किलो की जैकेटें पहनी जा सकती। और फिर आपने उसको फॉलो चेस किया? जी सर। अच्छा, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है। कौन था ये बंदा? आगे से करीब आके बताइए। है कुछ अरसे तो पहले साढ़े गांव में ही रहता था। तो आपका बच्चा उठा के ले जा रहा था जी, क्या? बच्चा उठा के ले गए थे, ट्रैक्टर भी खो के ले गए। सर इनको मर्डर करने आया था, ये था नहीं तो इसके बच्चे को, जो कि गांव में ज़रूरी ज़मीन पर मौजूद था, ट्रैक्टर समेत बच्चे को उठाकर ट्रैक्टर अलहदा ले गए और बच्चे को लेकर अलहदा जा रहे थे। इन्होंने सर इंटरसेप्ट किया, फायरिंग हुई, बच्चे को सर इन्होंने जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रिकवर किया और मुलजिम को गिरफ्तार किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठिए, तशरीफ रखिए। बहुत पुलिस ने आपसे पैसे कितने लिए इस काम के? किसी भी ने, डिप्टी साहब भी बहुत तामन किया। नहीं, मैं ये नहीं पूछा, ताउन तो किया होगा, आप आपने पैसे दिए होंगे, ताउन किया होगा, बगैर पैसों का पुलिस ताउन कर लेती है। बहुत शुक्रिया, आपके तशरीफ रखिए, बैठिए। हाँ जी, हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर भी सर ये मौजूद है सर, शाजिया सर हमारी शाजिया बेटी आ गया हो, ले आओ सारी अपनी बच्चियाँ आगे आ जाए। हाँ जी, इंचार्ज जेंडर सेल है सर, और जब से जेंडर सेल बने सर, आइए बेटी इधर आ जाओ, इधर आ जाए। हाँ जी बेटा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और सर हमने एक 1 विंडो डेस्क बनाया। अच्छा, वो कहते हैं जी SHO होगी वुमेन तो बेहतर होगा, हर थाने में खातून बेहतर होगा, क्या पॉलिसी बेहतर है शाजिया? ये जेंडर सेल क्या है और क्या करता है? सर ये जेंडर सेल हमारा 2021 में इसका स्टार्ट हुआ था। ये सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अब लेडीज़ के जितने भी केसेस हैं ना, उनका हम रिकॉर्ड लेते हैं जेंडर सेल में अपने में। VSO क्या होते हैं? सर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर सर। वो क्या काम करते हैं? सर थाने में जो विक्टिम्स आती हैं उनको सपोर्ट करती हैं, उनको मतलब उनको मेंटली तौर पर रिलैक्स करती हैं उनको। जब लड़की आती है किसी के साथ, कोई जिसने दुपट्टा खींच लिया, कोई ज्यादती कर दी, कोई बदतमीजी कर दी, तो ज़्यादातर लेडी पुलिस ऑफिसर आपके देख रहे हैं। सर हर थाने के अंदर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को लगाया गया है ताकि लेडीज़ को सर एक तो एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एटीट्यूड के ऊपर फ़ौरन वो लेडी रिसीव करे। तालीम कितनी बेटी आपकी? सर मैंने एमफिल ज़ूलॉजी किया है। एमफिल किया हुआ है, और एमफिल करके आप पुलिस में आ गई। सर मैं टीचर थी, बड़ा अच्छा करती थी, लेकिन ये कहते हैं पुलिस में पढ़े लिखे लोग होते ही नहीं। नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है। आपकी चंदा बेटी, आपका कितनी तालीम है? सर मैंने एमए इंग्लिश किया, लिंग्विस्टिक्स से। एमए इंग्लिश किया हुआ है, वो मुझे नहीं पता था इस बात का, आप क्या क्या लेके आए। बेटी आपकी कितनी तालीम है? सर मैंने एमफिल किया और इंशाल्लाह PhD कर रही हैं सर। एमफिल करके PhD कर रही हैं। और हमारी आपने बेटा? जी सर BA कंटिन्यू। BA पढ़ रही, शाबाश जी, B.Com है। ये है हमारी लेडी पुलिस। ये पूछते हैं जेंडर एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, खूबसूरत होटल के कमरों में बातें करना, और अच्छी बात है, वो भी बड़ी अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस आती है। लेकिन ये है वो तालीम, और ये है वो जी माँ बाप जिन्होंने अपनी बच्चियाँ पढ़ा दी। और जब आप लड़की को पढ़ा देते हैं, बेटी को पढ़ा देते हैं, तो ना सिर्फ वो अच्छी नौकरी कर सकती है, अपना स्टार्टअप बना सकती है, बल्कि अपने बच्चे अच्छे पढ़ा सकती है। तो ये बताओ कि आप लोगों को पुलिस वालों ने यहाँ पे तालीम का क्या काम? सर क्यों नहीं काम? अच्छा सर मैं तो टीचिंग छोड़ के आई हूँ। आप भी टीचिंग छोड़ के आई, ये भी टीचिंग छोड़ के आई, और लेकिन इसका कोई फायदा हुआ? सर बिल्कुल सर, जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी सर, मैं बुराई नहीं कर रही किसी डिपार्टमेंट की, लेकिन सर मैं तब ना तो खुद को इतना पावरफुल फील करती थी, और सर ना ही मुझे लगता था आप टॉप रखने के लिए आ गए, इसका मतलब? नो सर। हाँ। सर मैं लोगों की हेल्प करने आई हूँ सर। मैं यहाँ पे आने के बाद जितनी मैंने फीमेल्स को, सर मैं अभी 6 माह हुए हैं मुझे, मतलब ये जेंडर सेल पे आए हुए, तो सर मैंने 800-900 से ज़्यादा जो फीमेल्स हैं सर, मैं उनको 800-900 से ज़्यादा? सर अच्छा सर मुझे लगता है कि मैंने मतलब कोई भी एक ऐसी फीमेल नहीं होगी जिसको मुझे मैंने इंसाफ नहीं। सर हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि जो कंप्लेनेंट्स हमारे पास आएँ उनको सेम डे थाने से मसला हल करके हम घर भिजवाते हैं। ज़्यादातर किस किस्म के मसले आ रहे होते हैं? चंदा बेटी बताओ, सर ऊंची बात में बताओ ताकि आवाज़ भी आए। जी सर लेडीज़ के हमारे पास ज़्यादातर ना हरासमेंट से रिलेटेड आते थे। अभी हरासमेंट किस किस्म की? सर लास्ट डेज में हमें एक 15 की ना कॉल रिसीव हो रही थी कि बच्चियाँ MC गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर ना, उन्हें कुछ लड़के हैं जो तंग कर रहे हैं। तो उसके बाद हम 1-2 दफ़ा हम लोग गए। उसके बाद जो अंकल थे ना, वो सामने नहीं थे आना चाह रहे, जो कॉल कर रहे हैं ना अपनी बेटी को, मतलब वो हाँ लाजिम बात है, लोग शर्मा जाते हैं, इस तरह के केस आते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ये जो लड़कियों को स्कूल तक जाते हुए छेड़ने का ये मामला और ये जो है वो भी चलता है, ये हो रहा है कि नहीं होता? तो बहुत कम हो गया। अच्छा सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों लड़के अच्छे हो गए? मुबारक हो जी। हाँ जी। नहीं सर लड़के अच्छे नहीं हुए सर, उनको जब सजा मिलती है तो फिर उनको पता होता है। हाँ बस ये बात है कि बिल्कुल मेरिट के ऊपर होना चाहिए, बच्चियाँ स्कूल जानी चाहिए। तो बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखिए जी, बैठिए, अपना काम जारी रखिए जी। हमारे पास में सिविलियन बड़े बानूर चेहरे नजर आ रहे हैं जी, तो वहाँ तशरीफ लाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी आ जाए जी। जनाब सर ये लम्हा
محب नबी ताहिर साहब हैं सर, हमारे पीस कमेटी के मेंबर भी हैं और जो प्रोविंशियल लेवल की पीस कमेटी है उसके भी मेंबर हैं। तो ये क्या काम करती है पीस कमेटी आपकी? सब अल्हम्दुलिल्लाह ताला सर, ननकाना के अंदर एक चीज़ जो है वो सबसे मुनफरद है, जो तमाम अज़ला को मुनफरद करती है, वो ये है कि वहाँ पर फेथ एंड हार्मनी की फ़िज़ा बड़ी तो हमारे सिख कम्युनिटी के कोई लोग भी आप लाए हुए तो उनको लाइए। सुरजीत सिंह साहब मौजूद हैं सर, पीस कमेटी का मेंबर हूँ। हाँ जी, आपसे तो वहाँ मुलाकात भी हुई थी, आइए तशरीफ लाइए जी। तो आपके साथ सरदार जी, हाँ आइए आइए, हाँ आइए असला, ये बताइए, तशरीफ लाइए, इस तरफ आ जाइए, ये बताइए कि ये जो पटके होते हैं वो बड़े खूबसूरत रंगों के होते हैं, बड़े रंगीन होते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है? हमें भी कुछ समझाएं। किसी का टील कलर होता है, लाइट ब्लू, फिरोजी, येलो, ये क्या बैकग्राउंड है? सर कलर तो जौन सा मर्जी पहन लो, खुशनुमा माहौल जौन सा मर्जी पहन। अच्छा, मैं ये वाला जो कलर है ये हमारे गुरु साहब का है, एक सिंपल है। अच्छा, ये फिरोजी भी बहुत पहनते हैं, फिरोजी भी, सारे कलर चल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कड़ा, ये क्या इसके साथ बैकग्राउंड में बताइए ताकि लोगों को पता चले। हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने 5 ककार हमें दिए थे। अच्छा, कड़ी का जो मेन मकसद है, इसकी डेफिनेशन है कि आपके हाथ में होगा, आप काफ से शुरू होते हैं, काफ से शुरू, अच्छा सारे काफ बताइए कौन कौन से? कड़ा, हाँ, केस, हाँ, किरपान, कचहरा और कंगा। ठीक, अच्छा। कड़ा जो है सर, ये एक कड़ी है कि अगर आप किसी भी बुराई को हाथ डाल रहे हैं, हाँ, ऐसा काम आपके हाथ से होने जा रहा है जो इंसानियत के खिलाफ है, ये आपको याद दहानी कराएगा कि आपके गुरु साहबान ने आपको। अच्छा, अब सिखों का जो बिलीफ है वो एक अल्लाह के ऊपर है, एक अल्लाह ताला की जात के ऊपर है, बिल्कुल यूनिटी है और वो यकता है, उसकी जात के ऊपर है। ठीक है, ये वो है अव्वल अल्लाह नूर पाया। जी हाँ, बताइए वो क्या है? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। अच्छा, ये बताइए, सच्ची सच्ची बताइए, पुलिस के साथ आपका ताउन कैसा चल रहा है? पुलिस के साथ बड़ा ज़बरदस्त ताउन है। आज से 4 दिन पहले की बात है सर, जिस तरह आपने खुद कहा, बड़े पोलाइट ऑफिसर हैं। 4 दिन पहले हमारी कम्युनिटी के लोगों के एक प्लॉट पे कब्जा होने जा रहा था, जिसका ऑलरेडी केस अदालत में चल भी रहा है, तो उसका कब्जे का माहौल था। हमने अच्छा, ये बताइए कि सिख कम्युनिटी जो है उसका ये मशहूर है, बड़े गुस्से वाले होते हैं सर, ये बात ठीक है? गुस्सा वाले नहीं, मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, गुस्सा भी करते हैं, अच्छा, लेकिन मोहब्बत फैलाने वाले लोग। काम मेरिट पे ना फिर गुस्सा। ये साथ साथ में धमकी तो नहीं दे रहे हमें? अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, मुसलमानों के साथ हमारा आपका ताउन कैसा चल रहा है? सर, इसकी जो खूबसूरत फिजा ये है कि जब मिलाद शरीफ का जुलूस होता है तो बाकायदा गुरुद्वारे पे लाइटिंग होती है और हमारा फूलों से इस्तकबाल करते हैं। जब बाबा जी का जन्मदिन आता है तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इनके साथ होती है और हम इनको गुलबाशी करते हैं। और तीसरी बात इसके अंदर ऐड ये करना चाहता हूँ कि वहाँ पर 2 कम्युनिटी जो हैं वो क्रिश्चियन की भी हैं और 2 बड़ी लोकेलिटियाँ, एक जो है वो मार्टनपुर है और एक यंगसन आबाद है। तो वहाँ पर हिंदू भी हैं, यानी पारसी भी हैं। और आप देख लें कि ननकाना एक आपको पूरे पंजाब के अंदर ही, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मुनफरद नज़र आएगा कि वहाँ पर एक गुलदस्ता है। और ताउन की हद ये है कि जितनी खुशियाँ गमियाँ होती हैं हम इनके साथ इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे उनको सेलिब्रेट करते हैं और खुशी के अंदर हमारे साथ शामिल होते हैं, हम इनके साथ शामिल होते हैं। और पुलिस का जो रोल इसके अंदर है वो इंतहाई खूबसूरत है और वो ये है कि जितनी भी इनकी जो सरमनीज़ होती हैं, बाहर से डेलीगेशन आते हैं, पीस कमेटी को ये ऑन बोर्ड लेते हैं और उसके अंदर जाकर फिर हमको वेलकम करते हैं। एक बात सर मैं और करना चाहता हूँ सर, जब जड़ावाला का इशू आया, आपने एक वो सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया, वो इतना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत था। उसकी वजह ये बनी कि हमने DPO साहब के साथ मिलके एक थाना लेवल पर जाकर हमने जो है ना वो प्रोग्राम किए और लोगों को अवेयर किया और बताया कि इस्लाम की तालीमात क्या है वो। और मेरा खुद डॉक्टरेट इसी पे PhD की है जी मेरी इसमें। और आपसे सर वो CM साहब से मुलाकात होती रहती है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि हमें और क्या करना चाहिए सिख कम्युनिटी के लिए ताकि वो फील करें कि साउथ एशिया का बेस्ट कंट्री टू लिव इन और बेस्ट कंट्री फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कम फॉर, जिसको मैं तो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करता, टूरिज़्म का मैं कहूँगा आपकी यात्रा है, आपकी इबादत है, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो वीज़ा रजीम की आपने बात की थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर हो जाए। इसके अलावा जब यहाँ आते हैं, व्हाट शुड वी डू फॉर यू? सर, एक तो ये वीज़ा, हाँ। दूसरे नंबर पे जो ननकाना साहब का माहौल है बहुत अच्छा हो गया जी, रोड वगैरह तो सारे ठीक हो गए।
एक चीज़ की कमी है वो जो आपका कम्युनिटी सेंटर जी, कम्युनिटी सेंटर, हाँ, वो हम शरह कर रहे हैं। एक चीज़ की कमी थी, अंदर मेहमानों की रिहाइश हाँ, और ये सारा वो भी हो रहा है। हाँ जी, अहद है सर, इन्होंने सर एक बच्चा है जो 3 दिन का था तो वो गवाह हुआ था, अच्छा। और अब वो 3.5 महीने का हुआ तो वो रिकवर हो गया। अच्छा, आप बताइए इसके बारे में। सर ये हॉस्पिटल में पैदा हुआ था बच्चा, 3 दिन का था, रगवा हो गया, अगवा हो गया। क्यों? सर उसका जो मदई है उसका भाई जो है उसकी औलाद नहीं थी, वो 10-12 साल से दूर रह रहा था घर से, यानी कि उनकी मुलाकात नहीं थी आपस में। वो आया मिलने के लिए तो उसकी बीवी ने इंटरनल मामला था, लेकिन सर वो वापस नहीं कर रहे थे बच्चा, और रेड्स किए, रोपोश हो गया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बैठिए, तशरीफ रखिए जी। सर एक घर के अंदर डकैत एंटर हो गए तो इन्होंने वहाँ पे हाउस एंट्री कर डर लगा? नहीं सर। क्यों? जब हम एंट्री करते हैं, अगर हम अपने साथियों को आवाज़ ऊंची देंगे तो दूसरों पर प्रेशर पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। और बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहनते हैं? बिल्कुल जी। और बुलेट प्रूफ हेलमेट वगैरह सारी पहन के जाते हैं? फायरिंग प्रैक्टिस चलती रहती है एलीट की? चलती रहती सर। तो एलीट में सेलेक्ट कैसे होते हैं लोग? सेलेक्ट की सर पर सिलेक्शन की जाती है। सिलेक्शन की जाती है। और यू हैप्पी, आप लोगों को जो 6,500 से हुकूमत पंजाब ने 10,000 किया है, वो आपको भी मिलना शुरू हो गया उसका कि नहीं? अभी असर आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, अभी 3,000 आपके पास है। अच्छा, वो भी लगाए ना, मजीद 3,000 लगा दे? नहीं, 6,500 को हमने 10,000 कर दिया। अच्छा, वो हो गया, जिसका 37 करोड़ रुपए इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ से हो गया, ठीक। वो मिल गया कि नहीं मिल गया? अभी 3,000 का नहीं, वो मिल गया, वो मिल गया। और 3,000 और कौन सा मांग रहे हैं? नहीं, ये वही अभी अब मिला नहीं है ना, 3 मांग है। 3 माह के इकट्ठा हुआ जाएगा ना, वो बजट आपकी अप्रूव हुआ तो उसमें आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बैठिए, तशरीफ रखिए। सर जावेद है सर, ही वेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ये सर ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे, इन्होंने वहाँ पे डकैत पकड़े हैं सर। वेल डन। तो उस वक्त घबराए? नहीं सर, कोई घबराया नहीं। मैं, मेरा भाई था, उन्होंने टिकट की नीयत से मुझे रोका। रोका, 2 साइड पे बैठे हुए थे, एक को हमने पकड़ लिया और पकड़ के हमने 1-5 पे कॉल की। अच्छा, ठीक। और पुलिस के हवाले किया सर, और अपना उसके रिकवरी की गई। 478 392 का मुकदमा था सर। और 1 हफ्ता पहले डकैती हुई थी। 1 हफ्ता पहले डकैती के दौरान उन्होंने एक मोबाइल छीना, 1,12,000 रुपये उनसे छीना और मोटरसाइकिल छीना। मैंने मौके पे मोटरसाइकिल बरामद की और मुलजिम को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। अब्दुल रऊफ है सर, ये हमारे अभी इंशाल्लाह जल्दी सर आपके तवज्जुह से गाजी डिक्लेयर हो जाएंगे सर। अच्छा, गोली इन्होंने सर बाइक पे तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इन्होंने चेज़ किया क्रिमिनल्स को सर। पहले इनको गोली लगी, फिर उनको गोलियां लगी। वो दोनों सर शदीद ज़ख्मी हुए। ये दोनों लड़के साथ थे सर। और रऊफ सर जो है अपना अभी इसने अपना गिफ्ट जो है उसकी टांग में ही है सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहतयाब हो गया सर। और ज़बरदस्त काम कर रहा है जी। अफजाल साहब जी, उसका सर इमरान हमारा पुलिस का जो नेशनल टीम बनती है पूरे पाकिस्तान की, उसका फुटबॉल टीम का मेंबर भी है। अच्छा, जो जीत के आए अभी कोयटा से जीते हो, वो इनाम शनाम भी तो मिला आप लोगों को। वेल डन, बहुत अच्छे जी। अफजाल सर हमारी CIA के सर टॉप परफॉर्मर हैं सर। और रिसेंटली सर इन्होंने एक केस था, उसमें एक फैक्ट्री से बार बार सामान चोरी हो रहा था, तो उसकी विदिन 24 आवर्स जो है वो फैक्ट्री आपकी है सर? जी सर, मियां इलियास मेहर साहब उनकी। मिलिया साहब, अच्छा। और सर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये इज़ पोलाइट बट ही इज़ पोलाइट टू सफरर्स। अपनी ड्यूटी की तरफ पोलाइट नहीं है सर। पोलाइट होना अच्छी बात होती है, मैं भी तो सब तक मुस्कुराई रहा हूँ सर। आप भी कैसे मुस्कुराएं? और सर मैनेजमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है सर। ही इज़ वाज द फर्स्ट DPO सर, ही इज़ द फर्स्ट DPO जिन्होंने खुद अकरम प्लेस ऑफ रेफरेंस का मुआयना किया सर, वहाँ टीम को बुलाया। ये अफजाल साहब इनकी टीम के बड़े सरगर्म रुकन है सर। सुहेल सर चौकी इंचार्ज हैं मर्द बलोचा सर। और सर वो जो हमने गैंग अरेस्ट किया था जिसमें शूटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो सर इनकी इन्फॉर्मेशन की बेस पे हुआ था कि सारी अरेस्ट हुई। सेकंड सर रिसेंटली एक वहाँ पे पुलिस इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 ज़िलों की पुलिस ने एक जॉइंट रेड किया। उस रेड के अंदर सर ननकाना पुलिस को ये लीड कर रहे थे, जहाँ पे सर 45 मिनट सर फायरिंग होती रही। 45 मिनट के लिए सर एक दरबार के अंदर वो छुपे हुए थे एंड ही हैड द लोकल इन्फॉर्मेशन कि ये कहाँ पे हो सकते हैं। हमारे पास एक लोकेशन थी कि 4 किलोमीटर के एरिए में कहीं पे भी डकैत मौजूद हैं, जो हमने तो बड़ा डायनामिक किस्म का काम है पुलिस का। बैठिए, वेल डन सर, तशरीफ रखिए। अमीर सर, वो सर जो कहा जाता है ना कि पुलिस को जुर्म की इतला होती है, वो सर बेसिकली पुलिस की जो ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है, आपने अपने जहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं वहाँ पे आपका नंबरदार लेवल पे या पटवारी लेवल पे या गांव देहात में इतना अच्छा एक आपका इन्फॉर्मेशन की चेन है सर। ये इनकी इन्फॉर्मेशन की चेन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और 2 गाँव हैं सर, लाडूआना और ढारी बटियाँ, जहाँ पे मनशियात का बहुत इशू था, इन्होंने सर उसका सफाया कर दिया मनशियात का वहाँ। ज़बरदस्त, वेल डन। 2021 में 14 मन एक कंटेनर पकड़ा था। 14 मन क्या पकड़ा था? कंटेनर में चर्स सर। चर्स पकड़ी थी, जबरदस्त। पूरा बताइए ना। सर ये हमारे 2 गाजी हैं सर माशाल्लाह। गाजी साजिद है सर। 2014 में सर इनको फायर लगा था जब इन्होंने एक अरशाद और शादू नाम का एक डकैत है, इनको सर सीने पे फायर लगा और उसको भी फायर लगे, वो अपने अंजाम का पहुंचा। और आपको नसीर सर ये
अपना बताएं नसीर खुद। मैं सर अपना सामला में तैनात था सर। फायर किधर लगा? फायर नहीं लगा सर, आप जाओ ये टर्मिनल जो होने केएलपी का सर ये लॉन मजहबी जमहूरियत का मुकाबला करते थे और आपको फायर लगा। आप दोनों जो है हमारा वी आर प्राउड ऑफ यू। और ये आपके ऑफिसर हैं, ये पंजाब के ऑफिसर हैं, ये पाकिस्तान के बेटे हैं, ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। थैंक यू, तशरीफ रखिए, बैठिए। नासिर साहब के बारे में बताइए। सर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच के ये हमारे फील्ड स्टाफ हैं, फील्ड कांस्टेबल हैं, जो सीवीज़ में सर ड्यूटी करते हैं और थाने के अंदर होने वाली तमाम जो भी इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे पुलिस के हवाले से या क्राइम के हवाले से या कहीं पे कोई ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी है उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, तो सर ये हमारी डीआईबी के टॉप परफॉर्मर हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सर ये अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से बियॉन्ड जाते हुए इन्होंने सर वहाँ पे कब्ज़ा माफिया के हवाले से जो लोग वहाँ पे मासूम लोगों की ज़मीनें हथियाते हैं, उनके अमलाक पे कब्ज़ा करते हैं, इन्होंने सर उसके हवाले से बड़े अच्छा काम किया, हमें इतला वगैरह प्रोवाइड की। और सर मांगटा वाला के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि ही इज़ एज गुड एज दी SHO सर। वेल डन। आइए तो ये बताइए कि वो अफसरान जो नहीं आए, अभी बहुत सारे अफसरान नहीं आ सकते, हम आपसे वीडियोस भी इसमें शेयर करेंगे, तो जो अफसरान ननकाना के यहाँ नहीं आ सके क्योंकि नॉर्मल ड्यूटी चल रही है, उसके बारे में आप जरा मेरे को बताइए, उनके कौन कौन आपके जहन में आते हैं जिनके नाम? सर हमारे सारे ही ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं सर। SHOs जो हैं सर वो किसी का नाम बताइए ना, पर्टिकुलर बात कीजिए, जनरल बात हो सर। SHOs में हमारे SHO सैयद वाला यहाँ मौजूद है सर। SHO फैज़ाबाद सादिक अहमद है सर। SHO फैज़ाबाद आपके जो है वो कौन है? सर सदी अहमद सर। अच्छा सर, सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके अलावा सर SHO सिटी ननकाना मज़हर हैं सर, इंस्पेक्टर मज़हर। सिटी ननकाना के अंदर सर मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर प्लस जो रिलीजियस टूरिज्म होता है उसके हवाले से सिक्योरिटी को इंश्योर करना, वो सर उनकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा काम वहाँ। सबसे बड़ा क्राइम फाइटर अगर आप जो यहाँ नहीं बैठा हुआ उसका किसका नाम आएगा? सर जो यहाँ पर नहीं बैठे हुए, अगर उनके अंदर बात करें तो वो सर हमारे SHO सिटी शाहकोट आसिफ इकबाल हैं सर, सब इंस्पेक्टर। वो सर 2016 बैच की जो आप बात कर रहे थे, उस बैच से ताल्लुक़ रखते हैं। 2016 के ASI सर सब इंस्पेक्टर 2016 में जो आए थे। हाँ, मैं ASI को रेफर कर रहा था, उनको हमने इंशाल्लाह प्रमोशन कुछ जगहों पे हो गई, कुछ रहती है। अच्छा, DSPs में कौन से आपके? सर DSPs में DSP ननकाना इफ्तिखार रसूल बाजवा हैं सर। ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब सर। उनका लाहौर का प्रायर एक्सपीरियंस है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उनका सर। और दफ्तरी अमले में कोई बहुत सारे बंदे नहीं आते आपके दफ्तर, जो आप कहेंगे कि हमारे दफ्तर की लिंच पिन है या ये जबरदस्त काम कर रहा है? सर दफ्तरी अमले की जो हमारे इंचार्ज कंप्लेंट सेल हैं, सब इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन, ही इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब सर। अगेन सर हम फोकस करते हैं कि सेम डे के अंदर जो कंप्लेनेंट हमारे पास आया है वो थाने से रिलीफ लेके अपने घर जाए। इंचार्ज कंप्लेंट सेल गुलाम हुसैन है, कंप्लेंट सेल के अंदर ASI बिलाल हैं सर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब कंप्लेंट्स तो आपके उस पे कंप्यूटर पे ज़्यादा नहीं आ रही जो या आपके टेलीफोन्स के ऊपर और रबा? सर हमने मल्टीपल फोरम्स को ओपन किया हुआ है, उस वाले से सर बहुत सारे लोग, क्योंकि सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पे लोग रूटीन में थाना कचहरी के हवाले से, कोर्ट्स में या DC ऑफिस में अपने मसाइल के हल के लिए आते, तो सर अपने मसाइल के हवाले से जब उनको पता है कि DPO ऑफिस भी यहाँ मौजूद है और कोई प्रायर एप्लीकेशन अगर थाने में मौजूद है जिसमें तफ्तीश में कोई इशू आ रहा है या कोई रिलीफ हो, ननकाना से जाने के बाद आप ननकाना में किस तरह याद रखना अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप याद रखे जाएं? सर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि सबसे पहले तो सर जो हमारी फोर्स है वो सर इस बात को याद रखे कि फोर्स की वेलफेयर और फोर्स की वेलबींग के हवाले से जो है मेरी सर एक बड़ी प्राइम मेरा फोकस है सर। और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को याद रखें और मुझे याद रखा जाए इस हवाले से कि मैंने फोर्स की वेलफेयर और वेलबींग के लिए काम किया। और सेकेंडली वेलबींग के लिए हम क्यों काम करते हैं फोर्स की? ताकि लोगों को सर्विस डिलीवरी मिल सके, लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों की प्रोटेक्शन हो सके। तो सर्विस डिलीवरी कोई हमारी रिश्तेदारी लोगों से, पुलिस वालों से नहीं है कि हम इस वजह से उनका काम करते हैं, बल्कि सर्विस डिलीवरी हासिल करने के लिए हम करते हैं। तो उसके लिए आप कैसे याद रहना चाहेंगे? सर उसमें यही है कि जो भी कंप्लेनेंट थाने में आए उसको ये पता हो कि थाने में बैठा हूँ या DSP ऑफिस में या DPO ऑफिस में, मुझे रिस्पॉन्स सेम मिलेगा। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिस्पॉन्स जो है सर, ये आपके पीछे हमारे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि लाइट की शेड की वजह से नज़र नहीं आएंगे और हम इसको बाद में ऐड ऑन कर देंगे। ये कारनामे जो है सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया के ऊपर वो आप हमें साथ साथ शेयर करते हैं वहाँ पे? सर बिल्कुल, सोशल मीडिया के हवाले से हमने अपनी टीम में इजाफा भी किया है। हम सर सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर सर जो हमारे क्राइम ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ लेजॉन करके सर जो भी हमारा गुड वर्क है जिसके बारे में पब्लिक को नहीं पता कि पुलिस 24 घंटे में इतनी मेहनत करती है, नाके भी ये लगाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी ये करते हैं, कोर्ट्स में पेश होते हैं, तफ्तीश भी करते हैं, तो वो सर जो एक ऑल वन काइंड ऑफ अ रोल ये परफॉर्म कर रहे हैं उसकी सोशल मीडिया पर जो प्रोजेक्शन है इंक्लूडिंग ऑन डिजिटल मीडिया
ایز ویل ایز سر جو ہمارے وہاں پہ ایک لوکل سیلیبریٹیز ہوتے ہاں. ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں یا جو بھی ہمارے وہاں لوکل انفلوئنشلز ہیں, ان کے ساتھ ساتھ مل کے اس کو پروجیکٹ کرنا جو ہے سر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے حوالے سے ہم نے سر ایک ایون ڈی ایس پیز کے ساتھ پی آر اوز اٹیچ کیے ہوئے ہیں. تھانہ لیول کے اوپر اگر ایس ایچ او کوئی اچھا کام کر رہا ہے سر تو اس ایس ایچ او کے ساتھ بھی اس کی اپنی ٹیم موجود ہے جو اس کی کوریج کر کے اس کو میڈیا پہ لے کے آ رہی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پولیس ان کے لیے دن رات کوشاں رہتی ہے. سر ینگ آفیسرز کے لیے, پولیس والوں کے لیے آپ اپنے کلیگز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سر کولیگس کے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں سر اگر پبلک کے لیے سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا بیہیویئر, اپنا رویہ اس کو بہتر کرنا ہے, اور دوسرا ہمیں پبلک کے ساتھ اپنی جو کال آف ڈیوٹی ہے اس سے بڑھ کے رسپونڈ کرنا ہے. اگر ہمیں کسی مسئلے کے حل کے لیے کمپلیننٹ کوئی کمپنی کرنا پڑے کہیں پہ, یا اس کے مسئلے کے حل کے لیے کسی اور ڈپارٹمنٹ تک خود چل کے جانا پڑے, تو سر اگر ہم یہ والا کام کر لیں تو کمپلیننٹ جو ہے وہ پولیس سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں گے. سر آئی ایم شیور کہ آپ کو ننکانہ کے بارے میں بھی پتہ چلا ہوگا. ننکانہ میں ہماری سکھ برادری کتنی امپورٹنٹ ہے, ہمارے دل کا ایک ٹکڑا ہے, ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ باقی کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں, وہاں کتنے زیادہ لوگ آتے ہیں, کرائم کے ساتھ کیا چیلنجز ہیں, پولیس کس قدر اچھا کام کر رہی ہے, ہماری لیڈی پولیس فورس کیا کام کر رہی ہے, ہمارے پی ایس اے اور ایس ایس اے یعنی جو ہمارے وردی کے بغیر فرنٹ اینڈ کے اوپر, اور ایس آئی پی ایس انیشیٹو جو ہمارا ہے, اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن جو ہے, اس کے ذریعے کیا تبدیلی ہم لے کر آ رہے ہیں. اور ننکانہ میں باقی پنجاب کی طرح, باقی پاکستان کی طرح تمام وردی والے آپ کی کتنی خدمت کر رہے ہیں. بس دعا کرتی رہی گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو.